mechanical engineering department, and he has a vast experience of building the CA stores. One of the CA stores, which we have a mini CA store in this building, that is the Department of Food Science and Technology. Basically, he is the pioneer behind that. He is the person who actually has constructed that CA store. It's a small mini CA store. But you are talking about the small CA stores like 100 metric ton or 200 metric ton capacity. So we have around about 16 metric ton capacity at this our division of Food Science and Technology. Basically, he is the main man behind that. So he's a vast knowledge of this CA storage. So please take the advantage of him and ask him whatever you require. Now I hand over the mic to Engineer Imran Nawshahri for his presentation. Thank you. Thank you very much, Mr. Imtiaz Saab. Respected coordinators, fellow students, and other audience, Assalamu alaikum. As introduced by Mr. Imtiaz, my name is Imran Nawshahri. I've been working with the cold stores from past, I think, 13 years. My first assignment was the miniature cold store, CA store constructed in the coast. Basically, it was a very old store. I think the first one in Asia, 1982. It was a very old CA store. Although it was not functional now, but it was constructed at that time, and it was constructed well, taking the technologies available at that time. But that CA store was later on renovated, reconstructed with the latest equipment which were available at that time. I think now it's functional. It's functional. It's okay, functional. That's good. Okay. In the year 2010, I think there were only few CA stores available in Bali. Maybe 2 or 3. Yes, it was not more than that. HN AgriServe ka And pehle start people tha. were and then that was Altaf. yeah, Altaf. only those 2 CA stores were there, and people were a bit reluctant to start such business, maybe due to lack of knowledge, although it was this business was flourishing in rest of the India. But in Valley, the people were about to start this business. But nowadays, you can see that there are so many CA stores. Awesome. I don't know the numbers. 42. 42. That's a good number. 510 are But I can say you that still there's a lot of scope in this field. We have constructed 42 CA stores, but still what we need is a large number of CA stores still there. But we need a CA store with the genuine technology, genuinely constructed, with which we can store our apples for a longer period of time. I have seen with the CA stores, present CA stores, some of them CA stores are not encouraging to store the apples for more than 4 months. These CA stores have to be constructed with an idea to store the apples for at least 8 to 9 months. So this should be our main objective. Number one. Number two, the present modules which are working in the valley, most of them are on rent basis. No doubt, I can understand that nobody can own apples at an initial stage, but I request all the growers or businessmen, that you should own the apple. You should own the apple, or you can fix a percentage to rent it out and own some portion of the apple, which you can gradually increase to a level that you can make the project as a great success. Okay, as you all know, this what happened to this? Okay, as you all know, the CA store is basically a post-harvest management. In this case, we increase the shelf life of fruits and vegetables, but at the moment I will talk only about the apples. Okay, but we can store other things as well. In this case, we can increase the shelf life of the apples for a considerable longer period by managing the gases, oxygen level and carbon dioxide level within the chamber. Of course, with controlling the temperature and the relative humidity within the chamber. This is very important, which usually people skip relative humidity content. Most of the people don't consider it as so important, but it matters a lot.
To start a cold store, you need to develop a detailed project report for that. For conceiving a good project report, you need to have some things into your mind. Maybe some of you are going to start a new project, or some of the students which may in future go for such projects. So to conceive a very good DPR, you need to have some ideas, basic ideas, how to build a good DPR. People normally go out to the consultants, mostly outside Valley. Consultants give them a good money and they give you a DPR, and nobody discuss with that. Nobody discusses with some technical person what is this DPR, what he has given to me. Nobody bothers to discuss that. He gets a DPR, submits it in the proper quarters and get the sanctions and start the constructions. So first thing you need to understand is the conceptualization. You need to conceive a good concept. Good concept, first step will be your capacity. What is the capacity you want to build up? There's a good capacity which you can manage, which you can afford. Second is the proper layout. Proper layout of the CS store. Considering everything, you need to discuss with the consultants. What is the proper layout for you? Taking into account the land availability, chamber layouts, you need to consider those things. You can say the feasibility, but you need to say the chamber sizing क्या होनी चाहिए. किसी जगह पर क्या होता है कि कोई 250 टन का चैम्बर बना लेता, 300 टन का चैम्बर बना लेता, बट यू नीड टू फिल दैट एज वेल. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लोडिंग पैटर्न कि हमारी कैपेसिटी क्या है चैम्बर फिल करने की. नो नॉट कैपिटल. अभी मैं कैपिटल पर आया ही नहीं. मैं बोलता हूँ पहले डीपीआर जब आप फाइनलाइज करोगे, जब आप डीपीआर प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे रखना क्या है रैपल. उसके बाद मैं रखूंगा कैसे कि मैं कितना एक चैम्बर है मेरा, इसको मुझे फिल करना है. 300 टन का चैम्बर लिया मैंने, क्या मैं चैम्बर को एफिशिएंटली फिल कर पाऊंगा, क्विकली फिल कर पाऊंगा, वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने सेल्स स्टोर्स में, कुछ सेल्स स्टोर्स में यहाँ पर देखा मैंने, एज ए केस हिस्ट्री बता रहा हूँ. वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, 5-6 चैम्बर साथ साथ में भरते जा रहे हैं, रेफ्रिजरेशन भी ऑन नहीं करते. विदाउट स्टार्टिंग द रेफ्रिजरेशन वो चैम्बर फिल करना, अपने इम्तियाज साहब शायद देखा होगा, वो चैम्बर भरना शुरू करते 5-6 चैम्बर, एंड इट टुक देम 10 days टू फिल द एप्पल, एंड देन दे स्टार्ट द रेफ्रिजरेशन एंड से दैट्स हॉरिबल. So you need to decide a loading pattern beforehand. I need to, because refrigeration load is calculated only as per the loading pattern. You cannot go for a refrigeration system. Okay, I will install a 16 kilowatt, 20 kilowatt evaporator coil, and I will get the results. You need to have a loading pattern, proper loading pattern. Second is the selection of the equipment. Being a mechanical engineer, I am mostly bothered about this thing. मतलब मेरा चाहिए कि I need to select a proper refrigeration system, I need a proper CA system, CA equipment, मतलब नाइट्रोजन जनरेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स है, बाकी चीजें हैं. This is very important. Another is the grading and sorting line. I need to have a grading and sorting line of a proper capacity so that I can store the apples at the pace which I want. अगर मेरा चैम्बर फिल करना है 3 दिन में, so I need to have a grading line of that capacity which I can use, and I can fill a chamber in 3 days, or I can plan the chambers, 2 chambers at a time, and fill the chamber. Third is another one is the material handling equipment. Material handling में आपके forklifts आ गया. एक और बहुत इंपॉर्टेंट है material handling में पैकिंग लाइन, जो यहाँ के आई डोंट नो व्हाई, जैसा आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि आपने नोटिस किया होगा, पैकिंग लाइन मिसिंग है सीए स्टोर्स में. Grading and packing line, they have an integrated line. They have a grading, sorting, and another is the second, which is the packing line. Packing, and they don't have the automated packing. They skip it. Basically, with the result क्या हो रहा है? With the result क्या हो रहा है? Grading and line, grading and sorting की capacity है. You have a good capacity of grading line, but उसके बाद में जब पैकिंग का टाइम आता है, वहां पर आप मैन्युअली यूज करते हो. तो कितने आदमी लगाओगे वहां पर है, अवेलेबिलिटी कितना है, सो आप पेस अप नहीं कर पाते. You cannot match the pace of the grading and sorting line, and you need to stop the machines.
तो विद रिजल्ट अगर आपका 10 टन पर आवर की मशीन है, यू आर एबल टू यूज ओनली 4-5 टन पर आवर कैपेसिटी, सो यू आर वेस्टिंग योर कैपिटल. Instead of that, if you have a good packing line, separately packing line, मतलब investing a CR more is not a big deal in this project. You will reap it back. उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि उससे आपका लोडिंग पैटर्न की वजह से एक तो आपका मैन पावर बहुत ज्यादा यूज चाहिए, एंड यू आर इंक्रीजिंग ए ह्यूमन टच, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एप्पल्स की. और उसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका ग्रेडिंग जो आपने ग्रेड किया वो अच्छे से, इट डिपेंड्स नाउ ऑन द इंडिविजुअल हाउ ही विल पैक इट. नो डाउट ग्रेडिंग आपने किया, सारा सॉर्टिंग कर दिया आपने, अब वो उठाकर कैसे पैक करेगा, इट डिपेंड्स ऑन हिम ओनली. नाउ नाउ यू हैव नो इंटरफेरेंस. आप उसको कितना भी समझा दो, लेबर पार्ट है, मोस्टली दे आर फ्रॉम आउटसाइड, अवेलेबिलिटी वही है, तो कितना भी उसको समझा के वो नहीं समझेगा. और वो कैसे हैंडल कर रहा है, एप्पल उठाकर ऐसे भी रख रहा है, वो उस तक है. सो यू नीड टू हैव अ गुड पैकिंग लाइन. ये इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है. बाकी बेन्स वगैरह, क्रेट्स वगैरह, एवरीबडी नोज दैट उसको कैसे क्या करना है. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसंट्रेशन में आ जाता है, वो है स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन. While conceiving a DPR, you need to discuss with your consultant, with your team, what is the scope of expansion. क्योंकि अगर आपका एक्सपेंशन का स्कोप पहले ही इसमें आ जाता है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा. यू नीड टू क्रिएट सम जो मिसलिनियस फैसिलिटीज है, नॉट ओनली कॉमन फॉर बोथ. मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, इट विल बी कॉमन. अगर आपका सीएस स्टोर बहुत दूर है एक दूसरे से, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दोबारा से बनाना पड़ेगा. आपका लोडिंग वे ब्रिजेस आपका कॉमन आ जाएगा. कुछ कॉमन फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो. सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड scope for expansion, good planning for scope of expansion. Sorry. Another part is the technical specifications, which I am of the keen interest. The success of a CS store depends on the technical specification of the equipment which you have chosen. This is the backbone of it. You cannot change it later on. Okay. अगर आप बहुत पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद में आप मार्केट में जाकर उसके फाइनेंशियल ऑफर्स लेंगे, सो दोज विल बी रियलिस्टिक. People do what they do. They took a proposal and go to the vendors and seek quotations, seek offers, financial offers, and then there's a huge difference between the offers. Even 20-30% difference भी होता है. 20-30% difference matters. So he gets confused what to do. Naturally उसको कम ऑफर आएगा तो वो वही लेगा. टेम्प्ट तो वही होता है, उसकी टेंडेंसी वही होती है. उसकी वजह से क्या करता है, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता. उससे अच्छा होता अगर वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पहले फ्रीज करे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है डिस्कस विद द प्रॉपर्टी, डिस्कस विद द प्लानिंग टीम, तो उससे क्या होगा कि ही विल गेट अ रियलिस्टिक कोटेशन, रियलिस्टिक ऑफर्स, और उसके चीट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे उसमें. ये एक बहुत सारी वजह है जो मैं अक्सर सी स्टोर ओनर से डिस्कस करता हूं कि कॉस्ट वेरिएशन बहुत आते हैं. मतलब एक मुझे 3 CR देता, दूसरा 2 CR दे रहा. बोला कि इतना कॉस्ट वेरिएशन मैं क्यों जाऊं, ये बहुत महंगा दे रहा. मैंने कहा उसमें समझो आप, ये महंगा क्यों आ रहा है, महंगा क्यों दे रहा, सस्ता क्यों दे रहा, ये समझो आप. मतलब एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मुझे सीएस स्टोर के अंदर में मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मुझे 90-95% मेंटेन करनी है मुझे. और जो भी मुझे एक रेफ्रिजरेशन की ऑफर आएगी वो मुझे देगा कुछ, और दूसरा एक और आता है वो मुझे मेंटेन नहीं कर पाएगा उसका. नॉर्मली हम इस टेम्परेचर पर, इस कंडीशन पर हमारा डेल्टा टी कॉइल, शायद आप समझेंगे, डेल्टा टी मुझे उसमें चाहिए 4, बट आई गेट द ऑफर्स ऑफ डेल्टा टी ऑफ 6. डेल्टा टी मैं आपको बताता हूँ क्या है. डेल्टा टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉइल एंड द रूम टेम्परेचर विच आई वांट टू मेंटेन. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिसाइड होगी. नॉर्मल जो आदमी होगा वो समझेगा नहीं, वो पूछेगा नहीं सवाल कि यार तुम्हारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेल्टा टी क्या है. क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे सेल्स स्टोर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होता जा रहा है, मेंटेन नहीं हो पाता, नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पर क्या कर रहा है, वो डेल्टा टी उसका बहुत ज्यादा होता है. डेल्टा टी का मतलब है कि आपका यूनिट इवेपोरेटर जो अंदर है वो बहुत
स्मॉल है, छोटा कंपैक्ट है, एंड यू डोंट नीड अ कंपैक्ट फॉर दैट. यू शुड नॉट बी हैप्पी फॉर अ कंपैक्ट इवेपोरेटर यूनिट. आपका सरफेस एरिया इवेपोरेटर यूनिट का ज्यादा होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू मेंटेन दैट ह्यूमिडिटी. वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका रूम टेम्परेचर एंड आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम. उसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर क्या है, वो दैट्स अ टर्म कॉल्ड देन, क्या बोलते हैं उसको, एपरेट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. मतलब अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं मोस्टली मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू आर नॉट इन द रेफ्रिजरेशन फील्ड नहीं है आपका. अगर मैं यहाँ पर ठंडा पानी का गिलास रखूं, उसमें मैं देखूंगा बाहर से कंडेंसेशन होता जाएगा. सो ये एटमॉस्फेयर का पानी ले रहा है, मुझे ह्यूमिडिटी ले रहा है. ठीक है. इसी तरह से मैं जब रेफ्रिजरेशन इवेपोरेटर कॉइल में बहुत ठंडी करूंगा, तो उस पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाएगा. लेकिन वो लाएगा कहां से मॉइस्चर? सी स्टोर में. चलो यहाँ तो कोई बात नहीं. सी स्टोर में वो मॉइस्चर लाएगा कहां से? पहले चैम्बर से लाएगा, उसके बाद में चैम्बर की लेवल अटेन हो गई, उसके बाद कहां से लाएगा? उसके बाद में आपका फ्रूट से लाएगा. उसकी वजह से आपका फ्रूट का क्वालिटी डिग्रेड होगा, उसका वेट कम होगा, नेचुरली शेल्फ लाइफ खुद ही कम हो जाएगी. सो वी नीड टू, इसीलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को फाइनल करना बहुत जरूरी है. Query regarding this. Sure. So, what is the way out for this? Is na humidity control. ह्यूमिडिटी कंट्रोल में आपको, Do we need to install the humidifier? नो नो नो, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल द, बिकॉज इट्स अ वेरी, मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, 0 डिग्री टेम्परेचर है. सो 0 to 2 डिग्री टेम्परेचर यू कैन इजिली मेंटेन अ ह्यूमिडिटी विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर कॉइल्स. बट सिलेक्शन ऑफ इवेपोरेटर कॉइल हैज टू बी वेरी सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव चाहिए उसमें. मतलब अगर आप वेंडर पर डालोगे ये सब चीजें, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चीट यू, डेफिनेटली इज गोइंग टू चीट यू. अगर आपको, आप प्रॉपर एक हायर करो, प्रॉपर एक इंजीनियरिंग साइट, देखो हर एक फील्ड में, से स्टोर में क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है. मतलब एक कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, सो देयर इज वन एक्सपर्ट फॉर दैट. रेफ्रिजरेशन अलग सब टॉपिक है. सो रेफ्रिजरेशन के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए आपको. सीए के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए. पैनल इंस्टॉलेशन के लिए एक प्रोफेशनल चाहिए आपको. अगर आप ये सारे एक कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, नेचुरली ही इज गोइंग टू सेव द कॉस्ट. अल्टीमेटली सफर आप करेंगे और कोई नहीं करेगा. वो तो अपना सी स्टोर बनाकर चला जाएगा, 3 साल तक आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल. फाइनेंशियल एक डीपीआर के लिए बहुत जरूरी है, मगर फाइनेंशियल क्लोजर करने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सैक्रिफाइस ना करो. Don't sacrifice technical specifications. Technical spec, be stringent on the technical specifications. उसके बाद में yes, it's okay. Technical specifications आपके फाइनल हो गए, then go for the financial closures. कोई बात नहीं. हेलो हेलो, कुछ आ रहा है बस. मैं ऑडिबल हूँ? वैसे मैं बात कर सकता हूँ, ज्यादा जमावड़ा भी नहीं है तो कर सकते. अच्छा, यू नीड टू रिकॉर्ड इट. सर आप कीजिए उस पर ज्यादा ही है. सब चल
ओके, चलो ठीक है, ओके. So let's resume. Let us discuss about the main components of the CS store. As you, I think most of the persons know the components of the CS store, but still I will highlight here. Pre-engineering building, pre-engineered building. Second is the insulation panels, CA store doors, refrigeration, CA equipment, material handling, and other equipments as well, which are of the least importance. So I will discuss one pre-engineering building. Pre-engineering building is basically a metal building fabricated out of a sheet metal. Sheet metal is a metal plate basically, not sheet metal, metal plate. But the thing is that it is designed, simulated at a shop level. Okay, it's fabricated at the shop. The only one thing is that the material is to be lifted and assembled at the site. Why are we going for such? Why not the civil construction? This is only because it can be erected in a very short span of time, and you get a very clear span कि बहुत ज़्यादा column free structure आपका बन जाता है. So that's why we use a pre-engineered building. और इसमें robust भी है. You can have a surface treatments as well to lengthen the life as well. Insulation panels. The insulation panels are used for the walls, ceiling, and of course for this floor. Insulation panel are used as a thermal barrier. मतलब आपका heat loss जितना भी होता है वो उसको बचाएगा. But thermal barrier के साथ साथ में it also gives you a structural purpose. मतलब आपका sheeting आपके walls, ceiling सारा panels से का ही होता है. दूसरा है floors. Floors में आप insulation use करते हैं for a thermal barrier, but you need to have a vapor separator for them. मतलब इनके like polythene चाहिए आपको, layers चाहिए, vitamin चाहिए, टारपेल चाहिए, तो ये सारे लेयर्स आपको डालने पड़ेंगे. यू विल गेट टू नो वंस अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तब. मैं आपको बता दूं, पीओबी इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन इन योर बॉडी. ओके, पार्ट इज जस्ट लाइक अ स्किन. यू कैन सिमुलेट इट विद द बॉडी, विद द ह्यूमन बॉडी. यू कैन सिमुलेट इट. CA doors. CA doors, these are not these are bit special doors, different than the cold store doors. दोनों इसका भी काम है कि थर्मल बैरियर है, बट इसमें एक चीज है कि ये 100% गैस टाइट होना चाहिए, बिकॉज अंदर हमारा जो चैम्बर है वो वैक्यूम मेंटेन करेगा. ठीक है, बाहर का जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो अंदर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, सीए स्टोर डोर्स में हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन आता है. स्विंग डोर्स तो नॉर्मल छोटे स्टोर्स के लिए लगते हैं, बट फॉर अ मेजर स्टोर हमारे पास स्लाइडिंग डोर्स रहता है. उसमें ऑप्शन रहता है वर्टिकल स्लाइडिंग, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग. दिस कैन बी मैनुअल, दिस कैन बी इलेक्ट्रिकल, यू कैन ऑटोमेट इट with sampling windows, you can do anything. But the thing is that these CA doors should be very robust, and it should work for a longer period of time, not for 1 or 2 years. And these should be the gas tightness should be for the longer period of time. And moreover, this should take care of, or if there are some undulations in the floor or the wall panel installation, you should take care of it. Mostly this is not there. The panels are of very good construction, but still the ceiling should be such that it should work in even the minor undulations in the floor or the wall panels. Refrigeration system is the most important system. I can say that it is just like a heart in a human body. Without refrigeration system, you cannot think of a cold store, CA store. Refrigeration load has to be calculated for each chamber, taking into account the skin load, the loading pattern. That I earlier said that loading pattern is very important. So loading pattern has to be decided, then only you can calculate for the refrigeration load, product load, respiration load, lighting load, occupancies जो हम loading के दौरान यूज करते हैं. And then another is the fan load, because evaporator coil का fan भी चलता है, उसका भी लोड रहता है, वो भी हमें रिमूव करना, वो भी हीट हमें रिमूव करनी पड़ेगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम चैम्बर फिल करना शुरू कर दें, we need to start our refrigeration system much before that.
We need to maintain the temperature during loading period, which is very important. And that now we have there are different types of refrigeration systems in the market now. Broadly classified as direct expansion system and indirect expansion system. Direct expansion system और indirect expansion system, इन दोनों में refrigerants decide करता है. These refrigerants can be synthetic और नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स. नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स में हमारा अमोनिया जो कॉमनली यूज होता है, CO2 यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं होता है, अमोनिया इज कॉमनली यूज. बट सिंथेटिक में हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स जो है 404A, 4010A, 134A एक्स्ट्रा जो भी है. अब मसला यह है कि एवरीबडी इज कंफ्यूज विच सिस्टम इज बेटर. इस डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम बेटर और इनडायरेक्ट एक्सपेंशन. इनडायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम में आपको शायद पता होगा, उसमें हम हीट एक्सचेंजर बीच में एम्प्लॉय करते हैं और ग्लाइकोल सिस्टम इज सर्कुलेटेड इन द इवेपोरेटर्स. दैट्स आल्सो वेरी गुड सिस्टम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट. बट एवरीबडी इज कंफ्यूज विच सिस्टम इज बेटर. Should we go for a direct expansion system or should we go for an indirect system? Should we go for a freon based system? Should we go for an ammonia based system? The selection is yours. Everybody is good, but we need to consider something. We need to consider cost. We need to consider ease of operation. We need to consider whether you can handle the emergencies. Everybody has to take care of that. You need to have a very skilled labor to handle an ammonia refrigerant, because keeping in view its toxicity, you need to handle it. You should have a backup plan for handling emergencies for that. So if you are ready to take the trouble, then it's a very good efficient system. In the meantime, you need to control it from a remote location. You need to have a very minimum manpower. You need to minimize the human intervention. So you need to decide which system is going to function for you. Modern controls can be incorporated in both the systems. But people are confused. People are really confused about the systems. They want to have a best system at a very cheap price, but they have to optimize it. CA equipment. CA equipment is with the help of the CA equipment, we are able to manage the oxygen level and carbon dioxide level within the chamber. This system is not going to remove our humidity from the system. Humidity removal is possible only with the refrigeration system. This CA system I correlate with as the lungs. Just as a lungs, the CA equipment is just a lungs of works as a human body. It helps to reduce the chamber oxygen level from 21% to less than 1%. अभी बहुत अल्ट्रा लो ऑक्सीजन सिस्टम्स आए हैं. इट कैन मैनेज द ऑक्सीजन लेवल्स इवन टू लेस देन 1%. कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर आपको चाहिए. एंड एक और चीज चाहिए आपको, रूम प्रोटेक्शन सिस्टम. इसमें क्या होता है कि जो भी आपका गैसेस होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. इट इज टेकन केयर बाय इंस्टॉलिंग अ बलून सिस्टम विद एन ओवर प्रेशर एंड अंडर प्रेशर वेल्व्स. What I have seen as a peculiar incident, few stores यहाँ पर क्या है, 3 चैम्बर्स में एक लंग सिस्टम दिया गया, ब्रीदर बैग्स दिए. मतलब कॉमन इट कैन वर्क, there's no problem. Interrupt you. There are some stores जहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम डाले ही नहीं है, लंग्स नहीं डाले हैं. डाले ही नहीं है. डाले ही नहीं है. 3 का तो भी चलता. I have seen the stores because I am in the team. नहीं है. प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व्स लगे. वो कहाँ से लाएगा? कहां से लाएंगे? दोनों लगे, अंडर प्रेशर ओवर प्रेशर बैग दोनों चाहिए. बट ब्रीदिंग बैग्स वो लाएगा कहां से, ताकि वो फ्रेश एयर ना लाए. वही एयर जाए जो चैम्बर का एयर है, वो बलून में जाए और वही एयर वापस भी जाए. दैट इज द पॉइंट. नॉर्मल एयर मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं. आई डोंट नीड. उसमें आपका मशीन बहुत ओवररन हो जाता है. कितना टाइम रहता है, मतलब कितने टाइम के बाद आपने ऑब्जर्व किया है फ्रूट ठीक रहा? सो सीए स्टोर है 9 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 8 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं.
अब एक महीने तो घर में भी ठीक है। सेफ नहीं, क्वालिटी। देखिए, सेफ रहना और क्वालिटी रहना वो दो चीजें डिफरेंट है। उसका अगर आप चेक करेंगे शुगर कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट, वो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली वो चेंज हुआ होगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी मैटर्स। उसके बाद में जब आप बाहर निकालेंगे फ्रूट, वो कितने टाइम तक रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑक्सीजन लेवल हमारा 1% है, लेस देन 1% है, 1.3% है, अगर 2 होगा तो क्या होगा, ढाई होगा तो क्या होगा, कौन सा तूफान आएगा। या बीच में अगर कुछ पोर्शन के लिए, कुछ टाइम के लिए, मैंने देखा है सीएस स्टोर्स में पीक्स बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन लेवल 1% 1.5% है, तो अचानक से 2% 3% हो गया, उसके बाद नीचे आ गया। पीपल डोंट बॉदर फॉर दैट, बट दैट्स वो बहुत खराब बात है। यू नीड टू टेक केयर फॉर दैट, मतलब पीक्स अवॉइड करने। तो मशीन किस लिए, मशीन ऑन करनी है हमारी, मशीन चलनी चाहिए हमारी। और अगर ये पीक्स आते रहेंगे तो आपका मशीन बहुत ज्यादा चलेगा। और पावर कंजप्शन छोड़ दो, आपका मशीन में बेसिकली क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर सीव्स रहते हैं। मॉलिक्यूलर सीव्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को जाने देते हैं। तो धीरे धीरे करके इसमें जब भी एग्जॉस्ट होगा, दो वेसल्स होते हैं, एक एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दूसरा लाइन में आ जाता है और ये रिजनरेशन में चला जाता है। जो फ्रीक्वेंट चेंजेस जितना आप यूज करेंगे, जितने साइकिल्स होंगे, उतने मॉलिक्यूलर सीव्स के बीड्स टूटते जाएंगे, उसमें फाइननेस बनता जाएगा, तो आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, नेचुरली कॉस्ट बढ़ जाएगा, पावर कंजप्शन तो है ही। तो ये रहा इसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ना होने की वजह, उसके प्रॉब्लम्स। और आपका एप्पल का क्वालिटी जाएगा। पीपल डोंट माइंड क्योंकि दे डोंट ओन एप्पल। ऑक्सीजन परसेंटेज 2 जाए, 1 जाए, 1.5 जाए, 3 जाए, नो प्रॉब्लम। एप्पल अपना थोड़ी है, एप्पल किसी का है, वो घर पर बैठा है। वो तब पता जब चलेगा जब उससे वो उसका ग्राफ लेगा, पूरे साल का ग्राफ लोगों में दिन ब दिन आती जाएगी। वो जब उससे ग्राफ मांगेगा, भैया दिखाओ मुझे 4 महीने 5 महीने आपने मेरा एप्पल रखा, अगर खराब हुआ एप्पल तो पता चलेगा, इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा कि ग्राफ क्या था। साहब आप ठीक है, मैं ले लूँ। तो इसका हमें खास ख्याल रखना। मैंने देखा कि 3 चैम्बर्स का एक बैग रखा हुआ है, बलून रखा हुआ है। ठीक है, डिस्कस करोगे तो काम तो करता है, लेकिन व्हाट इफ अगर एक बैग डैमेज हो गया तो आपके 3 चैम्बर आइसोलेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका एक ही चैम्बर आइसोलेट करना पड़ता है। मेयरली आपका थोड़ा सा कॉस्ट जाएगा, बट ये करना जरूरी है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ कि 3 चैम्बर्स में, हमारा यहाँ पर 16 टन का स्टोर है, 4 चैम्बर्स है, तो 4 के 4 बैग लगे हैं, बट इट्स सफिशिएंट, एक ही बैग सफिशिएंट है। 4 लगे हैं और बाहर से वो बड़ा लगा मैं वो तो है ही, मैं तो बोलता हूँ कि चारों का एक ही बैग चलता, कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत भी नहीं है उसमें। बट ये प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये उससे क्या होगा, ना भी लगाए तो कोई बात नहीं है। अब 2-4 साल के बाद आपका जो गैस टाइटनेस है वो जाता रहेगा, जो आपने इलास्टोमेरिक कोटिंग की है वो धीरे धीरे करके क्रैक होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जब होगा तो अगर सबसे पहला सबसे पहला डैमेज पैनल पर ही होगा, पैनल जॉइंट पर ही होगा, तो उसको टेक केयर करने की बहुत जरूरत है। अभी हमारे पास स्केलेटन हो गया, स्किन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, नाउ हमारे पास क्या चाहिए, नाउ ब्रेन। अब हमें ब्रेन चाहिए, तो ब्रेन के लिए हमें सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। नॉर्मली कुछ साल पहले उतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हमारे पास उतना ज्यादा एडवांस कंप्यूटर्स नहीं थे, उतने ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। ये खत्म करता हूं पहले मैं। तो उस टाइम पर क्या करते थे कि कुछ सिस्टम ऑटोमेट करते थे हम, लेकिन आज हमारे पास बहुत एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स है। आप हर एक रेफ्रिजरेशन हो, सीए सिस्टम हो, ह्यूमिडिटी कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, इवन रिमोटली। और रिमोटली आप लॉग कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपने एक रखा हुआ है, ऑपरेटिंग स्टाफ रखा हुआ है, बट आपको उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, उसके लेवल्स देखने की जरूरत है। यू कैन गेट एन हिस्ट्री, यू कैन गेट अ रिमोट में आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। सो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स हैव अ ब्रेक, 5 मिनट्स एंड उसके बाद